ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਇਹ 8ਵਾਂ ਪਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਪਦੇ ਦੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਾਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਜਾਤ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਾਰਜਾਤ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਲੀਆਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਧਾਗੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਖਦ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਰੁੱਖ ਪਾਣੀ ਲੋਚਦੇ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਰੁੱਖ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਜਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੂਖ ਕਿਉਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਮਾਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਖ, ਇਹ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਾਰਜਾਤ, ਕਾਮ ਧੇਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੂਖ, ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਇਹ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੇ ਹੋਣ। ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ, ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੁਗਵੈ ਹਰ ਸਿਮਰਤ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾਸਿੱਧ ਕਾਮ ਧੇਨ ਪਾਰਜਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁੱਖ। ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 4 ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸ਼ਟ ਮਹਾਸਿੱਧ, ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਸਿੱਧੀਆਂ।
ਕਾਮਧੇਨ जब समुंदर रिड़किया गया सी ना, तो यह भी इतिहासक घटना मन्नी गई है कि जब समुंदर विचों रतन कड्ढे गए तो एक रतन कामधेन गां भी निकली है, स्वर्गां दी गां, जिन्हों मनिया जाता है जिहड़ी मनोकामनावां पूर्ण करदियां ने। पर साहिब जी कहंदे जे कोई मुख तो हर हर कहंदा है, रब रब कहंदा है, वाहगुरू जपदा है, तुसी किसी भी रूप दे विच अल्लाह आखो, राम आखो, नारायण आखो, हर आखो, तुसी जे जपोगे चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध कामधेन, कामधेन गावी, पारजात ये रुख जिहड़ा स्वर्ग दा है, कामधेन पारजात हर हर प्रभु नूं चेते करो, रुख ये सब कुछ मिल जाना। भाव कि तू चेते कर, थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। महाराज कहंदे जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इहां उहां सच होवै। कि इत्थे भी ते दरगाह दे विच भी पार जात यह हर को नाम, कि कोई कल्प बिरख होर नहीं है, कोई रुख होर नहीं है, मिथिहासक इक्को ही प्रभु का नाम सब कुछ है, सारी कामनावां पूर्ण करने वाला है। कामधेन हर हर गुण गाम, कि दुनिया के लोगों लिए कामधेन वखरी हो सकती है स्वर्ग की गां, पर सिख लई हर हर गुण गाम, हर हर रुख। भाव कि जिहड़ा हर हर जपदा है, क्योंकि गुरु अर्जन साहब जी नूं पुछया कि नाम किवें जपीए, तो महाराज जी कहंदे मैनूं ये नहीं पता कि किवें जपना है, बस मैनू ये पता है कि बस हर हर करी जाओ। उत्थे जिक्र है हर आराधना जाना रे। जे कोई मैनू पूछे किवें जपीए, तो महाराज जी कहते मैनू भी नहीं पता, हर आराधना जाना रे। हाँ बस इन्ना पता है हर हर गुर गुर करता रे, उठत बैठत सोवत जागत हर हर गुर गुर करता रे। तुरदियां फिरदियां बहिंदियां खांदियां नहावंदियां कपड़े लीड़े पाउंदियां तन सुगंधत लाउंदियां बोल चाल करदियां किरत विहार करदियां बाहर अंदर करदियां हर काम दे विच हर हर गुर गुर करता रे, हर हर गुर गुर करता रे, हर आराधना जाना रे, हर हर गुर गुर करता रे। ये आनंद दिता है गुरु अर्जुन साहब जी ने कि कामधेन जिहड़ी इच्छावां पूर्ण करने वाली गां है, वो सिर्फ प्रभु का नाम ही है, प्रभु का गुण गाम, गाम मतलब गाउणा, ये बख्शिश है जी। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। इस धरती ते बड़ियां कथावां चलदियां ने, बड़ियां कथावां पुराणा दियां कथावां ने, मिथिहासक कथावां ने, होर कुछ बहुत कुछ पिया होया, कोई फलानी कोई नरक दी कोई स्वर्ग दी। गुरु अंगद साहब जी ने क्या सी कथा कहानी बेदी आनी, बेदां दे विच कि कथावां दा गल्लां बातां दा मिथिहासकां दा कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं। आ भी उन्हां विचों ही निकली कामधेन ते पारजात, कोई अंत नहीं है। पर साहिब जी कहंदे है कि ये जिहड़ियां कहानियां ने, भावें असीं घर दे विच बहिंदे आ, गल्लां भावें दिन राती मारी जाइए, असीं अज तकरीबन सानू 45 दिन होण लगे क्वारंटाइन दे विच, 45 दिनां च रज रज के भी गल्लां मारियां होण असीं घरां दे विच, तां भी साडीआं गल्लां दा संसार मुकदा नहीं है। असीं कदी ये नहीं कहंदे कि लै गल्लां ही मुक गईयां, गल्लां कदी मुकदियां नहीं, पर उन्हां गल्लां दे विचों कला कलेश पैदा हो सकदे आ। उन्हां गल्लां कीतियां वो अरल बरल दियां गल्लां, आल जलजाल दियां गल्लां। महाराज जी कहंदे है कि जे प्रभु दे नाम नूं विसर गया ते नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। गालियां जिहड़ी गल्लां ने वो होछियां ने, गाली गाली दा मतलब कि ये गल्लां होछियां ही गल्लां ने, कुछ नहीं देना इन्हां गल्लां ने। इस करके गुरु अंगद साहब जी कहंदे कथा कहानी बेदी आनी, पाप पुन विचार दे दे लैना लै लै देना, नरक सुरग अवतार, उत्तम बाणी उत्तम जिहड़ी है, उत्तम मध्यम जाति जिनसी भरम पवै संसार। जे कुछ सवारण वाली गल है अमृत बाणी तत् वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। जे तू बाणी की कथा करेगा, जे तू प्रभु की विचार करेगा, तो साहिब जी कहते ये सारियां गल्लां विचों सब तो उत्तम है। की देगी ये सब ते उत्तम हर की कथा, प्रभु की विचार ही सब तो उत्तम है। नाम सुनत दर्द दुख लथा, उस प्रभु की सिफत सलाह नूं सुनिया, उस प्रभु दीयां बातां नूं सुनिया, मन का दर्द अंदर दे चिंतावां का दर्द ते करोड़ां तरह का दुख लथ जांदा है, भुल जांदा है जी। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै। जिहड़ी ये नाम की महिमा है, क्योंकि नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड सब कुछ है। ये जिहड़ी महिमा है किस रूप दे विच गाई जा सकती है? कई रूप दे विच। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भये चीता।
ये प्रभु की बंदगी संगत रूप दे विच भी गाई जाती, तो असीं गा रहे हैं सतसंगत रूप दे विच इकट्ठे होके। तो साहिब जी यही दसदे है कि जिहड़ी ये नाम की महिमा है, ये नाम की बरकत है, नाम की बख्शिश है, ये बड़ी कृपा करती है। ये जे चेता किया जाए नाम की महिमा की जाए, गाई जाए, भावें कीर्तन रूप दे विच, भावें कथा रूप च बोली जाए, विचारी जाए, सुनी जाए, नाम की महिमा संत रिद वसै, ये अंदर वस जाती है। किदे? संत दे हिरदे च, होर किसी आम हिरदे की गल नहीं की। आम जिहड़ा हिरदा हुंदा है जी, जिहदे अंदर कपट हुंदा है, जिहदे अंदर पाप हुंदा है, वो हिरदा हुंदा है पत्थर की तरह। पत्थर नूं जे सैकड़े साल भी तुसीं पानी दे अंदर रख दो, पत्थर अंदर सुक्के दा सुक्का रहिंदा है। पर जे कोई अंदरों बिल्कुल मुलायम हो जाए, कोई संत बन जाए, कोई सुनन वाला आ जाए, संत मिलै कि सुनिया कही है, मिलै असंत मश्ट कर रही है। ये भी दसांगे कि गुरबाणी दे विच भगत किनू आख्या, संत किनू आख्या, गुरमुख किनू आख्या, इत्थों तक साध किनू आख्या, ये भी आने वाली गल्लां दे विच विचार करांगे। नाम की महिमा संत रिद वसै, जिहड़ा अपने आप नूं सौंप दिंदा, महिमा सुनन जोगा हुंदा है, उहदे हिरदे विच ये ओत पोत करके वस जांदी है। संत प्रताप दुरत सब नसै। ते इत्थे जिहड़ा बंदगी करन वाले दा प्रताप हुंदा ना, सच्ची मुच्ची वो जिथे बह जाए उन्होंने फिर बोलण की लोड़ भी नहीं पैंदी। सच्चाई ये है कि जिहड़ा जिथे जाए बही है, भला कही है, झोल अमृत पी जाए। वो जिथे जांदा है, उहदियां वाइब्रेशनस, उहदा औरा सब नूं सवार दिंदा है, चौगिरदे नूं सवार दिंदा है। ते गुरु अर्जन साहब जी यही बख्शिश करते हैं कि जिहड़े जपण वाले ने संत प्रताप, उन्हां दा प्रताप बड़ा हुंदा है। दुरत सब नसै, दुरत कहंदे उन्हां दे हाजिर दे नाल, उन्हां दे होण दे नाल, उन्हां दे प्रताप दे नाल कईयां दे पाप नस जांदे है, कईयां दे पाप बिनस जांदे ने जी। संत का संग वड भागी पाइयै, संत की सेवा नाम ध्याइयै। ये जिहड़ा संग है ना बंदगी करन वालियां दा, ये किसी वड्डे भागां वालियां नूं ही प्राप्त हुंदा है, जिहदे सिर दे उत्ते सतगुर जी दा हथ है। इनू गुरु रामदास जी कहते, मेरा ही रै रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, जन्म जन्म की किलबिक दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया, बिन नामै जीवन बिरथा। नाम तो बिना ये जन्म बिरथा जा रहा, तू जप। और कित्थे जप? बंदगी करन वालियां दी सोहबत विच बह के, उन्हां दा संग कर। अज असी वर्चुअल संगत रूप दे विच बैठे हाँ, भावें फिजिकली तो असी डिस्टेंसिंग रखीए, भावें दूर दूर बैठे हाँ, पर सुरत रूप दे विच असी जुड़े हुए हैं। आप संगत की सोहबत मैं मान रहा, आप संगत एक दूसरी संगत जिहड़ी दूरों दूरों बैठी हुई है, भावें जूम ऐप ते भावें यूट्यूब ते, असी कई रूप दे विच कईयां दे कीर्तन, कई विद्वानां दी कथा सुन रहे हैं, कई कीर्तनियां दा कीर्तन कर बैठ के पर आनंद लै रहे हैं। वो भी संगत दा, संत दा संग है। ये वड्डे भागां नाल मिलदा है। ते जे मिल जाए तो जे कोई गुरु की गल आखे, तै साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या दीजै, सीस वडै कर बैसन दीजै, विण सिर सेव करी जै। कोई आण मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पै आप विचाई। इसी रूप च कोई जन हरस्यों देवै जोर, चरण गहूँ बको शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। संत का संग वड भागी पाई है। वड्डे भागां नाल ये संग मिलदा है। संत की सेवा नाम ध्याई है। कला उन्हां नाल बैठ के नाम जपना भी, ये नाम जपना नहीं हुंदा, संत दी टहल भी कर देना, संत दी आओ भगत भी कर देना, उन्हां नूं बिठा के मान सत्कार भी दे देना। वैसे कोई बंदगी करन वाला किसी दी मुथाजगी दे विच नहीं हुंदा, पर जे कोई दे ते सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं, जे उहदी टहल भी की जाए, जे उन्होंने प्यार आओ भगत की जाए, वो भी नाम ध्याई है, भाव नाम का सिमरन रूप ही है। भाव उहदे नाल उहदी सेवा कीतियां मन दे अंदर सिमरन सेवा भाव प्रगट हुंदा है। संत की सेवा नाम ध्याई है। संतां दा संग कीतियां नाम चेते आउंदा है जी। नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। गुरु अर्जन साहब जी कहते इस धरती दे उत्ते, इस सृष्टि दे विच
नाम तुल, नाम दे बराबर कुछ होर नहीं है, कुछ होर नहीं है। किसी ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू, मेरे वास्ते इक्को ही है। गुरु पातशाह जी कहते ਇਹਦੇ बराबर कुछ नहीं है। नाम तुल कछ अवर ना होए, कुछ नहीं हो सकता। नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, नानक धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी, जोत ते गुरु नानक साहब जी दी है। नानक पद है, तुसी देखोगे पूरे सुखमनी साहब दी ये लड़ी इउं बनी है, जिथे पदे की समाप्ति हो रही होगी, जिथे अष्टपदी समाप्त हो रही होगी, 8वें पदे की आखिरी तुक नानक पदे ते ही समाप्त करनगे गुरु अर्जन साहब जी। नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, कोई विरला पुरुष गुरु दे राही, गुरु दे सन्मुख होके गुरु नूं चेते कीतियां ही नाम की बख्शिश नूं प्राप्त करता है जी। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब ढंढोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। बहुत कुछ वेख लिया, वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर कीने, राम नाम एक आख्यर, बहुत कुछ देख लिया। पर महाराज जी कहते किनका एक जिस जी वसावै। गल तो ये सिमरतियां शास्त्रां दे ज्ञान दे इकट्ठे करन दी नहीं है। बहु शास्त्र बहु सिमरती, इनू सिमरती नहीं पढ़ना, सिमरती पढ़ना। मां नूं भी सिहारी लगी हुई है। बड़े ही शास्त्र बड़े ही सिमरती, पेखे सर्ब ढडोल, सारा कुछ ढूंढ के वेख लिया। गुरु अर्जन साहब जी का एक कीमती बचन है, मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हाँ हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई दूसरा नहीं है, मेरे मन ते तन दा प्राणा वो वाहिगुरु है, प्राण दा खसम है। हाँ हर बिन दूजा अवर ना जाना। तो इत्थे जिक्र किया कि हाँ मन तन खोजी भाल भलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिला मेरी माई। मैं मन ते तन राही खोज की, भाल की। वो बहुत सारे विद्वानों नूं भी बड़े सारिਆਂ नूं पुछया कि क्यों प्यारा प्रीतम, क्यों दा मतलब किवें, वो प्यारा प्रीतम किवें मिल सकता है। तो सतगुर जी कहते हैं ना इत्थे ते ना इत्थे, ना शास्त्र ना सिमरती, बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब ढडोल। मैं सारा कुछ लभ के वेख लिया, सारा कुछ वेख लिया है। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। ये सारे ज्ञान ध्यान दीयां गल्लां ते कर सकते ने, पर प्रभु दे सच्चे ज्ञान रूपी नाम तक नहीं पहुँच सकते। पूजस नाही हर हरे, ਉਹਦੀ बराबरी नहीं कर सकते। ਇਹਨੂੰ ही कबीर साहब कहते हैं, दिनस ना रैन वेद नहीं शास्त्र। क्योंकि उस वेले बनारस की धरती ते कहा जाता सी कि जिहदे कोल वेद शास्त्र का ज्ञान है ਉਹੀ रब की प्राप्ति कर सकता है। पर कबीर साहब नूं ते ना कोई पढ़न दिंदा सी वेद शास्त्र, ना उन्हां दे लागे लगन दिंदा सी। उन्होंने जिहड़ा ज्ञान अंदरों हासिल किया है, तो कबीर साहब ने भी यही कहता सी कि जिहड़े वेद शास्त्रां दा ज्ञान तुसीं लई फिरदे हो, जिहड़ा राम रमिया होया प्रभु मेरे अंदर है, तुहाडे वेद शास्त्र का ज्ञान इहदे लागे भी नहीं लग सकता। यही गुरु अर्जुन साहब जी ते समझाउण की कोशिश कर रहे। कबीर साहब कहते दिनस ना रैण वेद नहीं शास्त्र, तहां बसै निरंकारा, कहो कबीर नर तिसै ध्यावो बावरिया संसारा। ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਵਰਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੁੱਚਰ ਘੜਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, नानक नाम अमूल। उस नाम दे बराबर ही कोई नहीं कर सकती, हर हरे उस हर दे बराबर कोई भी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान कित्थों मिलता है? सतगुर जी अष्टपदी दे विच उन्होंने खोल के दस रहे ने। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। कहते भावें कोई दुनिया का जाप होए, भावें तप होए, भावें कोई ज्ञान ते भावें हर तरह का ध्यान होए, जिन्नियां मर्जियां धर्म पुस्तकां, जिस तरह का मर्जी ताप कर लो, पुठे लटक जाओ, तन नूं हंडा लो, भुखे रह लो, ये भी कई तरह के ताप ने, वर्त रख लो, यज्ञ कर लो, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, जिन्नियां भी ज्ञान ध्यान दियां गोष्ठियां ने। खट शास्त्र, खट कहते छे शास्त्र जिन्हों मन्ने गए आ जी, जिहदे विच मीमांसा आंदा है, पतंजलि आंदा है, योग है, सांख है, ये वैशेषिक है, ये 6 ने कुल मिला के। योग शांक वैशेषिक मीमांसा, ये 6 शास्त्र भी पढ़ लो।
खट शास्त्र सिमरत सिमरती भाव जिन्नियां भी सिमरतियां ने, ये जिन्नियां भी 18 सिमरतियां ने, ये भी इकट्ठी कर लो। वैसे जिहड़ी सिमरत है ना, जिस तरह असीं कहंदे ना रहत मर्यादा, सिमरतियां दे विच हिंदू सनातन धर्म दीयां मर्यादावां ने, वो भी इकट्ठियां कर लो, वो भी पढ़ लो। खट शास्त्र सिमरत वखियान, उन्हां सिमरतियां दी व्याख्या करन दे योग भी हो जाओ। गुरु अर्जुन साहब जी कहंदे, अगे बख्शिश करते ने जी, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग मन बन मधे फिरिया। सिर्फ और सिर्फ 6 शास्त्रां दा या सिमरतियां दा ज्ञान नहीं, योग अभ्यास योगा भी तुहानूं आउंदा होए। पर गुरु अर्जुन साहब जी कहंदे है, योगा नूं कदी मुक्ति दा मार्ग ना समझ लिओ। योगा सिर्फ तन दी बॉडी जिमनैस्टिक्स ते हो सकदियां ने, तन दी एक्सरसाइज से हो सकदियां, तन नूं साध ते सकदियां ने, पर यह जरूरी नहीं है कि मन पूर्ण रूप दे विच नहीं साधिया जा सकता। इस करके इस योग दी भी गुरमत दे विच कोई किसी रूप दे विच भी प्रवानगी नहीं है। हाँ, तन करके तुसी करो, तुहानूं मुबारक है, पर इनू रब दे नाल तुसी नहीं जोड़ सकते। योग अभ्यास भी होए तुहाडे कोल, योग साधना भी होए, कर्म धर्म क्रिया, इनू धर्म नहीं पढ़ना, इनू धर्म ही पढ़ना है। धद्दे पैर रह रहा है, तुसी जिन्ने मर्जी कर्म कांड कर लो, सारे वर्त रखने हैं, भावें पूजा करनी है, भावें किसी तरह का भी है, ये कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूट है, ये सब लुट्टे पुट्टे जाने हैं। योग अभ्यास धर्म क्रम क्रिया, सगल त्याग बन मधे फिरिया, सारा कुछ छड़ के जंगलों च भी चले जाओ, जे ये भी कर लो। अनेक प्रकार किए बहु जतना, बड़े तरह के जतन ने बंदगी करन दे, ना सिर्फ घर परिवार त्यागया, बल्कि खाना पीना भी त्याग दिता। ये भी अनेक प्रकार के जतन ने, बड़े उपराले ने। कि कोई कहता कि मैं 40 दिन बिल्कुल बंद करके चुप रूप दे विच मौन धारांगा, ये भी कई तरह के जतन ने। 4 तरह के जतन सी, सोचा सोच ना हो गई, चुप है चुप ना हो गई, जे बन्ना पुरियां भार भी कर लो, सारा कुछ कर लो। ये सतगुर जी ने ये 4 जतन दसे ने। सोचा सोचना हो गई, जे सोची लखबार, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहज सियाणपा लख हो तां इक ना चलै नाल। हुण ये सारे ने, भावें बन्ना पुरियां भार हो जाए, भावें चुप्पै चुप हो जाए, भावें भुखियां भुख हो जाए, सतगुरु जी कहंदे है ये जिन्ने भी तरह के जतन ने, अनेक प्रकार किए बहुत जतना, ये जतन भी कर ले। अगे कहंदे पुण्य दान होमे बहु रत्ना, होमै नहीं पढ़ना, होमे पुण्य दान भी करके देख ले। होमे का मतलब है जी अग की आहुति बालनी, होम जग जिन्हों आपां होम कहंदे हैं ना, सनातन दे विच यज्ञ करने। होमे बहु रत्ना, बड़े जवाहरां दा दान देता। तुसी कल्ले पुण्य दान नहीं कीता, पुण्य नहीं कीते, दान भी नहीं कीते, तुसी होम यज्ञ भी कर ले ते जवाहरात भी तुसी दान दे विच दे दिते। ये कुछ भी हो जाए, शरीर कटाए होमै कल राती, वर्त नेम करह बहु भांति, शरीर दे टोटे टोटे भी करवा लो, भावें स्वर्गां दी प्राप्ति दे लई, उस रब की प्राप्ति दे लई। वो रब ऐ नहीं मिलना। शरीर कटाए हौमै कर राती, इत्थे हौमै दा मतलब है कि होम यज्ञ भी आख्या कि देही दे छोटे टुकड़े विच कटना, ते फिर हौमै दा मतलब यज्ञ अग। हौमै कर राती, उस शरीर दे अपने शरीर दे छोटे छोटे टुकड़े करा के भावें अग्नि नूं क्यों ना भेंट कर दो। ये जतन भी तुसी करके देख लो। गुरु अर्जुन साहब जी कहंदे ये भी कर लो। वर्त नेम करै बहु भांति, घनेरे तरह के वर्त रख लो, घनेरे तरह के नेम कर लो। भांत भांत दियां जिन्नियां कर्म कांड दियां किस्मां ने, ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰੋਂ वेदां ਦੇ ਵਿੱਚ खास करके यथुर्व ते यजुर्व वेद ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। ये सारा कुछ है, सारा कुछ कित्थों शुरू किया महाराज जी ने। भावें सतगुरु जी कहते हैं, भावें तुसी ज्ञान ध्यान इकट्ठा कर लो, भावें तुसी खट शास्त्र सिमरत वखियान कर लो, भावें तुसी घरों बाहर भज जाओ, छड़ जाओ, अनेक तरह के जतन कर लो, होम यज्ञ कर लो, वर्त रख लो, बहु भांति करके भी वेख लो। तुसी तन नूं भोरा भोरा करके भी अगन दे विच भेंट कर दो, पर ये सारियां चीज़ां फिकियां ने, झूठ है। ये विचों भी रब की प्राप्ति नहीं होनी। ये नाम दे तुल बिल्कुल नहीं है।
नहीं तुल राम नाम विचार। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਬਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਤਿਗਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਜੋੜੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰ ਥੀਵੈ। ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ। ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰੀ ਰਹੇ। ਲੈ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਰੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ। ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਚਿਰ ਜੀਵੈ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿ। ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਵੀ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾ। ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾਂਗਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਕਈ। ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾ, ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ, ਤਪੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਣ। ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਣ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ ਦੇ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਨਿਕ ਅਸ਼ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਨਿਕ ਅਸ਼ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ। ਕਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨੇ। ਇਹ ਅਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਵਾਹਵਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਸ਼ਵ। ਅਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਕਿ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸ਼ਵ ਬਣਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ, ਅਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੋੜੇ। ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੁਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵ ਔਰ ਹੈਵਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਰੰਗ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ, ਨਸਲ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵਰ। ਭੂਮਦਾਨ, ਹੈਵਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸ਼ਵ ਹੈਵਰ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਨਿਉਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਆ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਪਾਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਐਸ ਹੋਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ ਨਿਕੋਰ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਤਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਨੰਗਾ ਫਿਰੀ ਜਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ
दिगंबर ते श्वेतंबर 24 तीर्थांकर दे मंदिर पूरे राजस्थान च ने। 1/3 ऑफ राजस्थान में आप ट्रैवल किया। UGC का मेरे को एक प्रोजैक्ट सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी दे विच जब मैं PhD के दरम्यान सी, तो काफ़ी राजस्थान की रिलीजियस प्लेसिस मैं फाइंड कीतियां ने। कई एक असी पूरा इंसाइक्लोपीडिया बना रहे सी, वो खैर प्रोजैक्ट है वो यूनिवर्सिटी का, वो तो हुण कित्थे पहुँचे हो तो साडे प्रोफैसर सी जानते होणगे, कोई खैर सुला उस रूप दे विच जद उत्थे जाके देखा पूरे राजस्थान च 24 तीर्थांकर दे मंदिर है। तकरीबन जिथे वड्डे स्थान ने ना राजस्थान च, उस स्थान दे नाल गुरु नानक साहब जी का स्थान भी बनया होया। गुरु साहब उत्थे भी गए ने। जैनियां नूं कित्थे कित्थे महाराज जी ने उपदेश दिता, श्रेवणियां नूं जैन मार्ग संयम अत साधन। जैनी की करते हैं, मल करके भी टॉयलेट मल करके भी मल नूं फरोल देंदे अपने, क्यों कहते कि साडे मल थल्ले कित्थे कीड़े ना मर जाण। महाराज जी ने उन्होंने बहुत समझाया, भाई पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। तुहाडे शरीर दे अंदर करोड़ा ही बैक्टीरिया जन्म लै रहे, तो करोड़ा ही मर रहे हैं, उन्होंने किस तरह बचा सकोगे? ये तो प्रथा ही चलती है। तो जैन मार्ग संयम अत साधन, करड़े आत्मक नेम ने जैनियां दे। शरीर के वालों नूं, सिर के वालों नूं हत्थां नाल पुट पुट के कटदे ने। जिहड़े श्वेतंबर या दिगंबर ने, वो पूरी बाणी है जी, पूरा शब्द है, असी विचार लांगे, कभी आएगा अगे किसी, पर वो वखरे रूप दे विच। हाँ, मेरे YouTube चैनल के उत्ते लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा पई हुई है, पहले अंग तो लैके तकरीबन 900 अंग तक पूरी कथा पई है। तुसी मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनप्रीत सिंह ते जाओगे, तुसी प्लेलिस्ट ते जाओगे, प्लेलिस्ट ते लड़ीवार कथा का फोल्डर है, उथे पहले अंग तो लैके 900 अंग तक कथा है लगातार। उहदे विच मैं तुहानूं कल अंग नंबर दस दांगा, क्योंकि हर एक पार्ट ते हर एक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 50 60 जिथे तक है उत्थे अंग नंबर भी नाल लिखिया, इस तो इस अंग तक। तो वो तुसी जैनियां दी जिहड़ी गुरु साहब ने उपदेश दिता है, वो भी उहदे विचों बाणी चों तुसी कथा सुन सकते हो। वो मैं कल लिंक भी शेयर कर दांगा जे तुसी चाहोगे। जैन मार्ग संयम अत साधन, जैनियां दे रियाजत दे तरीके करड़े ने। कहंदे जे तू ये भी कर ले, जे तू इस मार्ग ते भी तुर पे, निमख निमक कर शरीर कटावै, अपनी देही नूं भोरा भोरा करके वडवा भी दे, भावें भुखा रह रह के घटा दे, भावें सुका दे, निमख निमक कर इनू बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर ले, सुक्का कर ले, बंजर कर ले। तो सतगुरु जी कहते तौ पी हौमै मैल ना जावै। ये हौमै दी मैल ऐ जाण वाली नहीं है, ये एवें नहीं जाण वाली। तुसीं श्लोक नूं याद रखियो, बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेखै सर्ब ढंढोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल। भाव सिमरतियां शास्त्रां ये बाहर दे ज्ञान नूं इकट्ठे करके हौमै आउंदी है। याद रखियो, गुणा करके ही हौमै हुंदी है, अवगुण करके थोड़ी हौमै हुंदी है। ये भी कोई डाकू थोड़ी अपने कार्ड च पाउंदा है कि मैं डाकू हाँ जी, आ लो मेरा विजिटिंग कार्ड। कोई मर्डर अपनी एडवरटाइजमेंट थोड़ी कर रहा हुंदा है। जिहड़ा गुणी जन हुंदा है, जिहदे कोल कोई गाण दा गुण हुंदा है, वजाउण दा, कोई बोलण दा, कोई पढ़ाई दा, उही बंदे ते अपना दसदे हम बड़ कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सने, ये सारा कुछ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੈ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਜਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਉ ਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ नाम जपत गत पाहे। नाम दे समसर कुछ नहीं है, नाम ही हौमै नूं साड़ेगा। हौमै नामै नाल विरोध है, दो ना बसें इकट्ठाएं। जां तो इस शरीर रूपी भांडे च नाम वस सकता है, जां इस शरीर रूपी भांडे दे विच हौमै वस सकती है। जे नाम वस जाएगा तो वस्तु हौमै बाहर हो जाएगी। वस्तु अंदर वस समावै, दूजी होवै पास। जे नाम वस गया तो सच्ची मुच्ची हौमै निकल जाएगी। जे हौमै तो फिर नाम नहीं वस सकता। पर हाँ, हर के नाम समसर कछना, ये सारा कुछ करके जैन मार्ग कर ले, वर्त रख ले, नेम कर ले, अपने शरीर नूं कटा दिता पूरा पूरा करके, हर के नाम समसर कछना है। नाम दे बराबर कुछ नहीं है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे,
नाम जप के ही, पर ये नाम कली अपनी हौमै अहंकार बिरती दे विच नहीं। बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। सतगुर जी की शरण विच आके तो मैं आया, शरणी आया, भरोसा आया, कृपा आया। मैं शरणी आ गया प्रभु जी, तुसी कृपा करो। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, रात प्रभु पावे मार। मैं आ गया किस रूप चे? हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूकै सब सोग संतापे। मैं प्रभु की शरण आया तां मेरी हौमै कट्टी गई है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। गुरु का नाम, प्रभु का नाम ही जप के गति भाव की परम गति की प्राप्ति होती है, हौमै खत्म होती है। अज की विचारा मैं इत्थे ही संकोच रहा हाँ जी। आप सारिया संगतां दा धन्नवादी हाँ। भुलां चुकां दी खिमा बख्शो जी। गज बज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।